پاکستان کا مستقبل، پاکستان، عمران خان اور ورسز آل جتنے بھی ہیں، اور اس وقت جو فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب کا نظام ہے اور مین میڈ جو نظام ہے فرد واحد کا، وہ مکمل طور پر کولیپس ہو رہا ہے، مکمل طور پر تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ کیسے جا رہا ہے۔ کل ایک آیت کی حدیث بیان کی گئی کل ایک، کہ وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی اور مسلمان کا نقصان ہو۔ جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ پڑھا، حدیث سنائی، تو یہ بالکل درست بات ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے کہ کیا پچھلے 3 سالوں میں ان کے دور اقتدار میں یہ سب کچھ ہوا؟ کیا مسلمانوں کا، پاکستانیوں کا جو ہے وہ پاکستانی محفوظ رہے؟ کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب اس وقت فیلڈ مارشل اور اس وقت حکمران ہیں پاکستان کے، اور سیاہ و سفید کے مالک ہیں، اور ان کے سامنے کوئی بھی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ سب کچھ اپنی خواہشات کے مطابق پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسلامی ٹچ، ظاہر ہے پاکستان ایک مسلمان ملک ہے اور بڑے دین سے وابستہ ہماری قوم ہے، تو اسلامی ٹچ دینا یہ حکمرانوں کا پرانا وتیرہ رہا ہے، اور سب سے زیادہ قرآن مجید اسلامی جو ٹچ ہے وہ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے دیا، 11 سال نفاذ اسلام، اور چونکہ وہ تحریک نظام مصطفیٰ چلائی گئی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف، اور اس لیے اس سارے ایلیمنٹ کو انہوں نے جمع کر لیا، ضیاء الحق صاحب نے اس سارے اس تمام عناصر کو جو تحریک نظام مصطفیٰ چاہتے تھے، اور اس وقت انہوں نے دیکھا کہ پاکستانی قوم میں بڑا تھرسٹ ہے، بہت ہنگرنس ہے کہ یہاں پہ اسلامی نظام آنا چاہیے، اور پھر انہوں نے 11 سال حکومت کی تھی، اور جیسے ہی ان کی حکومت ختم ہوئی اور وہ طیارہ حادثے کا، دہشت گردی کا شکار ہوئے اور تمام ہماری فوجی قیادت چلی گئی، تو اس کے ساتھ ہی ان کا جو فلسفہ، ان کا نظریہ، ان کا پورے کا پورا 11 سال وہ ساتھ دفن ہو گئے، اور پھر بالکل ایک اپوزٹ ہمارے سامنے تصویر تھی، اور وہ پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کی تھی جی۔ اور اس طریقے سے یہ پھر ضیاء الحق صاحب آ گئے، ضیاء الحق صاحب انلائٹنڈ ماڈریشن لے کے آئے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وہ اپنا نظریہ لے کے آئے، اور اپنے نظریے کے ساتھ انہوں نے 8-9 سال، تقریباً 9 سال حکومت کی، اور پھر ان کا بھی جو ہے انجام وہ کوئی اچھے انداز میں ان کا اقتدار کا خاتمہ نہیں ہوا، ہمیں سب معلوم ہے۔ تو ایک طرف ضیاء الحق صاحب اسلامی نظام، دوسری طرف جناب پرویز مشرف صاحب انلائٹنڈ ماڈریشن، یہ دو انتہائیں تھیں، اور دونوں سپہ سالار تھے، اور دونوں اس ملک کو، پاکستان کو اپنے ذہنی نظریے کے مطابق چلانا چاہتے تھے۔ دونوں ناکام ہوئے، اور دونوں جیسے ہی جن آنکھیں بند ہوئیں، زمین اوجھل، پہاڑ اوجھل، وہ سارے کا سارا فارغ ہو گیا جی۔ اب آ گئے ہیں جناب عاصم منیر صاحب۔ اب جناب عاصم منیر صاحب اگین وہ کبھی وہ یحییٰ خان صاحب والا، سوری صاحب کہہ دیا میں نے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کبھی وہ یحییٰ خان والی بروٹیلٹی پہ آ جاتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اس وقت وہ اپنے مخالفین کو فتنہ اور فساد کہتے ہیں، فتنہ اور فساد کہہ کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلامی حوالے دیتے ہیں، فتنۃ الخارج، فتنہ، فساد، اور اس طریقے سے، اور پاکستان تحریک انصاف ان کا، اور پاکستان کے تحریک انصاف کے ساتھ باقی اپوزیشن جماعتیں بھی ان کے ساتھ کلب ہو گئی ہیں، وہ اور جو ان کی آواز کے ساتھ آواز نہیں ملاتا، جو ان کو اپوز کرتا ہے، جو ان کے ساتھ آرگومنٹ کرتا ہے، جو ان کے طرز حکمرانی کو، جو سوچ کو نہیں مانتا، وہ اس کو بھی فتنہ اور فسادی سمجھتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات ان پہ ان کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ تو ایک خاص منظر میں، وہ بیٹھے ہیں، ایک سوچ کے اندر وہ بیٹھے ہیں جی، شکنجے میں، اس وہاں سے باہر نہیں نکلتے۔ میں نے ایک بہت ہی
इंतहाई ज़िम्मेदार आदमी से बात की, बहुत ही ज़िम्मेदार आदमी, आप जितना भी आप कह सकते हैं। तो उनसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि इनको समझाएँ, आपके बहुत आप ज़ाहिर है आपकी एक्सेस है, तो आप समझाएँ ये सब कुछ क्या हो रहा है? तो वो हँस के कहते हैं कि क्या समझाना है जी? वो तो खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं तो खुद बिल्कुल आलिम फ़ाज़िल हूँ और मैं जो कुछ कर रहा हूँ, ये दीन है। तो इस पे वो कहते हैं कि ये मेरे लिए भी हैरानी थी और वो हँस रहे थे। उन्होंने कहा जी हम क्या समझाएँ? वो तो अपने आप को बिल्कुल जो कुछ कि यही दीन है। तो लिहाज़ा वो किसी और माहौल में जा चुके हैं, किसी और रहते हैं। तो ये एक हैरत अंगेज़ बात है। क्योंकि मैं सिर्फ़ एक बात उनको कहूँगा, क्योंकि वो आगे जाके, क्योंकि हरमैन ज़ियाउल हक साहब के साथ उनकी, अब वो ज़ियाउल हक साहब वाला जो है वो ले रहे हैं लाइन। क्योंकि याहिया खान वाला काम करके देख लिया उन्होंने, ब्रुटैलिटी करके देख ली, ताकत का इस्तेमाल करके देख लिया। 9 मई मुरीद के और 26 नवंबर इस्लामाबाद, कश्मीर, ये सारे 8 फरवरी इलेक्शन चोरी, सारे के सारे काम। अब वो जब उलमाए कराम के सामने आते हैं और पाकिस्तान के उलमाए कराम के सामने मुखातिब होते हैं, तो उस वक़्त बिल्कुल एक अपने आप को दीनी शख्सियत में ढाल लेते हैं कि, और उसमें कुरान मजीद की आयत को पढ़कर अहादीस का हवाला दे के वो बयान करते हैं। अपने आप को मुकम्मल, वो वही बात है कि मुझे वो दोस्त की बात याद आ जाती है, और जो कि बहुत ही एक्सेस है, और जिन्होंने मुझे बताया, तो बात उनकी बात सही है कि वो तो बिल्कुल एक और मूड में हैं और अपने आप को वो इसी तरह ही समझते हैं कि ये हर चीज़ मैं दीन समझ के कर रहा हूँ। तो फिर सवाल ये है कि उनको कामयाबी क्यों नहीं हो रही? प्रॉब्लम मसला ये है, कामयाबी क्यों नहीं हो रही? और पाकिस्तान अगर वाक़तन, क्योंकि एक कल उन्होंने एक और हवाला दिया कि हमारा जो पाकिस्तान है, वो 27वीं रमज़ान को मारिज़ वजूद में आया और हिजरत की, और रियासत तैयबा के साथ उन्होंने कहा मुमासलत बहुत है, क्योंकि उस वक़्त भी हिजरत हुई थी, बड़ी हिजरत। तो पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में भी हिजरत हुई, 27वीं रमज़ान को बना, बिल्कुल ठीक है। अब ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन क्या हमने उस पे अमल किया? हमारे हुक्मरान उस पे अमल कर रहे हैं कि रियासत तैयबा जिस मकसद के लिए मारिज़ वजूद में आई, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उसके बाद आने वाले खुलफाए राशिदीन ने जो इस्लामी मुआशरा कायम किया, और जो बुनियादी तौर पर एक इस्लामी और इस्लामी मुआशरे की बुनियाद बेस एक नुक्ते में जस्टिस, इंसाफ, इंसाफ था, इंसाफ। और इंसाफ का मतलब क्या होता है कि कोई छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, बगैर बिला तमीज़, बिला रंग, बिला नस्ल, बिला मज़हब, उसको इंसाफ मिले, उसको उसका हक मिले। ये दीन का बुनियादी तकाज़ा है, बुनियादी तकाज़ा। और यही हमारा दीन जो है, बाकी अदियान से और बाकी से चीज़ों से हमें मुमताज़ करता है कि हमारी बुनियाद ही इंसाफ पे है। और कल हमारे बहुत ही साकिब शिरानी साहब हैं, माहिर मईशत हैं। कल उन्होंने एक गुफ्तगू की, परसों कल की ये गुफ्तगू। उन्होंने कहा जी पिछले 3 सालों में मुल्क का हर शोबा ज़िंदगी माँ सिवाय हुक्मरान तबके के, हुक्मरान तबका क्यों खुशहाल है? बाकी सारे बर्बाद हो रहे हैं हुक्मरान। और 3 सालों में अवाम पर 50 ट्रिलियन रुपए के टैक्सेस लगाए गए। 50 ट्रिलियन यानी कि 50 खरब, 50 खरब के टैक्स लगाए गए। इन 3 सालों के टैक्सेस पिछले 17 साल के बराबर हैं। यानी कि पिछले 17 सालों में जितना टैक्स लगाया, उतना टैक्स हमने 3 सालों में इकट्ठा किया, और इस टैक्स का सारा पैसा हुक्मरानों ने अपने ऊपर खर्च किया।
50 ट्रिलियन रुपया अपने ऊपर खर्च किया हुक्मरानों ने। ये है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का 3 साल का हिसाब, जो निज़ाम उन्होंने, क्योंकि रियासत तैयबा की मिसाल देते हैं, रियासत मदीना की, कि रियासत मदीना और पाकिस्तान की मुमासलत है। तो जनाब ये आपकी कारकर्दगी ये है। उसके बाद गैर मुल्की सरमायाकारी पिछले 51 साल की कम तरीन सतह पे हो गई है और 150 गैर मुल्की दौरे किए, 35 अरब डॉलर के MOU साइन हुए, लेकिन 1 रुपया भी नहीं आया। ये हमारे हालात व वाक़यात हैं जी। उसके बाद आगे बढ़ाते हैं मज़ीद कि 2024-25 में साकिब शिरानी साहब माहिर मईशत गैर सियासी कि 2024-25 में 18 ट्रिलियन रुपया टैक्स इकट्ठा हुआ एक साल में। 18 ट्रिलियन, 3 सालों में 50 ट्रिलियन, एक साल में 18 ट्रिलियन, जिसमें से 9 ट्रिलियन सूद की मद में चला गया और 9 ट्रिलियन तकरीबन 36 अरब डॉलर हुक्मरान तबके ने अपनी मराद पर खर्च कर लिया। एक साल में 36 अरब डॉलर सूद अदा किया और 36 अरब डॉलर हुक्मरान ने अपने ऊपर खर्च किया। हुक्मरानों ने, अवाम पे नहीं खर्च हुआ। और 36 अरब डॉलर का मतलब पता है क्या है? एक साल में 36 अरब डॉलर का मतलब है 3 अरब डॉलर हर महीने। हर महीने 3 अरब डॉलर हुक्मरान अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगला सुने कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। कि दूसरा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान 44% से ज़ायद आबादी सतह गुर्बत के नीचे जा चुकी है और 53,000 रुपए की करप्शन हुई, 53,000 अरब रुपए की करप्शन हुई है और बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत इंतहा को पहुंची हुई है। और 3 सालों में, वो मैंने आपको बताया कि 3 सालों में सिर्फ हुक्मरान तबका जो है वो आगे बढ़ा है। उसके बाद फौजी फाउंडेशन के 6 अरब डॉलर के असासे हैं और 9 कंपनियां इसके अलावा हैं। 1 अरब डॉलर के से जायद असासे इन 9 कंपनियों के हैं और ये हमारे अली जान साहब ने बताया है कि ये इनकी वर्थ है। और फिर साकिब शिरानी साहब एक और बात भी उन्होंने की कि इस आमरीत और पिछली आमरीतों में एक बड़ा फ़र्क है कि पिछली आमरीतों को अमेरिका ने सियासी सपोर्ट के साथ, पैसों के साथ भी सपोर्ट किया और ख़ास तौर पे मिलिट्री को। इस आमरीत को मगरब की तरफ से सियासी सपोर्ट तो है मगर इनको पैसा नहीं मिल रहा और ये उम्मीद दिलाता है कि शायद आमरीत खुद अपनी मौत आप मरे मुआशी तौर पर। यह है एक खुश आइंद इत्तला। साकिब शिरानी साहब कहते हैं कि मैं पिछले 3 सालों से मईशत को कवर कर रहा हूं। इतनी बदहाली पहले कभी नहीं देखी जो इन 3 सालों में मैंने देखी। शरह नमू तरक्की की रफ्तार 1.7%। पाकिस्तान की तारीखी कम तरीन शरह नमू है। सरमायाकारी कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और ये 30 सालों में ये बुलंद तरीन सतह है जो गुर्बत की और बेरोजगारी की है। तो ये हमारे हालात व वाक़यात इस वक्त मौजूद हैं। तो इन हालात में, ये सारे हालात क्यों हैं 3 सालों में? तो क्योंकि आप हर चीज़ एक दिमाग में आपने बिठाई हुई है, फितना और फसाद की। कुरान मजीद की आयत आप पढ़ते हैं और बकौले मेरे दोस्त के, और वो कहते हैं हंस के कि जनाब ये तो सारा कुछ वो दीन समझ के कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इस हालत में क्यों है? गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, कर्ज, कर्ज़े अज़ीमुश्शान सतह पे आपको बता दें। हुक्मरान, अय्याश हुक्मरान, तर्ज़ हुक्मरानी फुल अय्याशी। और हमारी रियाया कहाँ पे है? यानी कि हम रियाया हैं, हम कहाँ पे हैं? कहीं भी नहीं। और फिस्तायत इस कदर कि हज़ारों नहीं, मजमूई तौर पर लाखों मुकदमात दर्ज हो चुके हैं झूठे, बेबुनियाद। हर किसी को दहशतगर्द, गद्दार,
स्टेट, मुल्क दुश्मन, पता नहीं बागी, गद्दारी, पता नहीं क्या क्या मुकदमा, यहाँ तक कि एक खातून और एक मर्द का निकाह, उस पे भी आपने कीचड़ उछाला, और एक खातून के ख़ास अय्याम, उस पे भी आपने लहक लहक के ये सारे दानिश्वरों ने प्रोग्राम किए। तो ये सारी की चीज़ें जो हैं, ये तो रियासत मदीना और रियासत तैयबा का ये तो नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ हुक्मरानी तो ये नहीं था। रियासत तैयबा और रियासत मदीना का तसव्वुर तो ये नहीं था। तो फिर आप ज़रा सोचें, अपने गिरेबान में झाँकें और ज़रा थोड़ा-सा अपनी आँखों को खोलें कि फिर हो क्या रहा है। इसके बाद आते हैं जी क्योंकि ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि आपने इंतकाम आपके ज़हन से नहीं निकल रहा। इंतकाम, हर वक़्त इंतकाम, हसद, बुग़्ज़, ये सब कुछ नहीं निकल रहा, और आपने आज खुद तसव्वुर कर लिया कि ये फ़ितना है, ये फ़साद है। बजाए इसके कि जो असूलों पे परखा जाता, आपने जुडिशरी अपने कंट्रोल में कर ली, तमाम इदारों का कंट्रोल खुद हासिल कर लिया। किसी की बात आप सुनते नहीं हैं। तो आप अपने सीनियर्स की बात नहीं सुनते। बाकी तो किसी सबॉर्डिनेट की तो सुननी क्या है। तो